Students, welcome back to my channel. In today's video, we will see. Okay. So, next question. It is a part of again the important MCQs, or we will call the questions which are important for the upcoming set examination. So, are you preparing for the English literature? So, stay tuned with my channel. So, guys, let's see the remaining questions. And if you really like my videos or the questions answered, you understand, then please like, share, and subscribe for the motivation. So let's start with the today's first question. Identify the play written by Asim Karimboy from the following. तो options देख लेते हैं. Princess, The Captives, An Experiment with Truth, Angkor, and The Dance-Like Man. So we have to choose from the list A, B, D, B, C, D, and A, B, C or A, B, E. So हमारा correct option is second, B, C, D. That is The Captive, An Experiment with Truth, and Angkor. These are the Asim Karimboy's plays list here for you guys. Let's see, students, when you are studying the Asim Karimboy or the Pritish Nandi, so keep in mind that he is the drum dancer, the dole drummer. These are the important works. So when we are studying the Indian English literature, so when we are reading the Indian English literature, these authors are important. As like that, we have the other writers. So these are the modern writers, जैसे महामणि भट्टाचार्य को पढ़ना जरूरी है. As well as we have the ममता कालिया, गौरी देशपांडे. These are the new. जैसे हमें श्री अरविंद को हम पढ़ते हैं, कमला दास को हम पढ़ते हैं, या फिर हम जो हमारे आर के नारायण है, उनके साथ ही हमें कुछ मॉडर्न राइटर्स को भी पढ़ना जरूरी है. जैसे हम बोल सकते हैं अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा को पढ़ना जरूरी है, उनके वर्क्स हमें पता होना चाहिए. शिव के कुमार, के एन दारूवाला, अरुण कोलाटकर, जयंत महापात्रा जो पोएट्री में है. एज वेल एज जब हम बात करते हैं ड्रामास की, तो हमें वी शुड रीड द सम मोर ऑथर्स. Okay, and in which that here we are talking about Asim Karimboy. So Asim Karimboy हो या फिर महामणि भट्टाचार्य का नॉवल हो So Many Hungers जो 1947 में आया था. महामणि भट्टाचार्य भी इम्पोर्टेंट ऑथर हो जाते हैं. So we should read his all work. क्रोनोलॉजी में हमें वर्क्स उनके पता होने चाहिए, या फिर उनका वर्क हो मोहिनी, म्यूजिक फॉर मोहिनी. So this is how we should learn about the करंट ऑथर्स ऑल्सो. तो यहाँ पे असीम करीमबॉय की जो वर्क है, डोल ड्रमर 1960 में आया था, द डम डांसर 1961 में आया था, एंड ये जो है द हंग्री वंस 1965, रिफ्यूजी 1971, सोनार बंगला इन 1972 एंड इनकलाब इन 1971. देन अगेन वी विल हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Which of the following two plays were written by W.B. Yeats? तो W.B. Yeats ने दो प्ले लिखे थे, The Countess Kathleen and another work is, कौन सा देख लेते हैं हम. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, The Land of Heart's Desire and The Countess Kathleen. ये दो वर्क जो है हमारे W.B. Yeats लिखे थे, और The Land of Heart's Desire एक वन एक्ट प्ले था, और काउंटेस कैथलीन जो है उनका फर्स्ट पब्लिश वर्क था. ठीक है. ये रिपीट हो रहे क्वेश्चन, तो आज के क्वेश्चन में स्टार्ट हो गया. Who among the following has used line from the Shakespearean play Othello to critique racism in one of his poem? तो कौन से वो
पोएट है जिन्होंने शेक्सपियर के अथेलो से एक लाइन लिया है टू क्रिटिक द रेसिज्म इन वन ऑफ हिज पोम। तो एडवर्ड ब्रेथवेट, डेरेक वॉलकोट, फ्रांस फानन और गुगीवा थियांगो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेरेक वॉलकोट। डेरेक वॉलकोट जो है उन्होंने अथेलो और द गोट्स एंड मंकीज इसका रेफरेंस, मतलब अथेलो इस प्ले का रेफरेंस लेते हुए he reinterpreted the character of Othello, highlighting the racial and sexist implication of the sexist in the sense gender bias, thereby using it to address issues of the colonialism and racial prejudice. Next question: The Voyage and the Travel of Sir John Mandeville was written in कब लिखा था? Queen's English, Northumbrian dialect, Midland dialect and Cockney. So it is written in the Midland dialect. Next question: Mark Pierce novel Woman on the Edge of Time. Mark Pierce novel Woman on the Edge of Time is based on. तो ये जो नॉवल है किस पे बेस्ड थी? 1976 में मार्च पियर्सी की एक नॉवल आई थी वुमेन ऑन द एज ऑफ टाइम। वो किस पे बेस्ड थी? सुला स्मिथ फायरस्टोन इन डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, मार्गारेट अटवुड की द हैंडमेड्स ऑफ टेल पे बेस्ड थी, या लुइस कैरल की एलिस इन वंडरलैंड पे बेस्ड थी, या डोना हार्वे की साइबॉर्ग मैनिफेस्टो पे बेस्ड थी? देखो, मार्क पियर्सी की नॉवेल, उसका टाइटल है विमेन ऑन द एज ऑफ द टाइम, जो 1976 में आई थी, और किस पे बेस है? तो देख लेते हैं हम। सुलामिथ फायरस्टोन्स डायलेक्टिक ऑफ सेक्स पे ये नॉवल बेस है। फायरस्टोन रेडिकल फेमिनिस्ट टेक्स्ट इन 1970 प्रपोज करती है पेट्रार्कियल ऑपरेशन में, एक पेट्रार्कियल सोसाइटी में स्टेम फ्रॉम द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द मेन एंड वीमेन एंड आर्ग्यूज फॉर अ टेक्निकल रिवॉल्यूशन टू फ्री वुमेन फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन। सो पियर्स नॉवल एक्सप्लोर अ फ्यूचर सोसाइटी and that largely eliminated the traditional gender roles and biological reproduction, directly reflect करता है Firestone's theoretical propositions and their potential societal implication। और वो अपने नॉवल में एट्रीब्यूट करती है, कौन से पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किए हैं? एबोलिशन ऑफ जेंडर रोल्स एंड जेंडर लैंग्वेज, रिप्रोडक्शन मैनेज कलेक्टिवली यूजिंग आर्टिफिशियल ओम, children raised communally by various adult co-parents, and society that prioritize ecological, sustainable and social equality. Next we will see the elegy written in country church in is written in, ठीक है? The elegy है ये थॉमस ग्रे की important famous the elegy written in a country church। तो क्वाड्रेंट्स ऑफ 10 सिलेबल लाइंस में लिखी है, ऑक्टेव एज सेस्टेट में लिखी है, हेरोइक कपलेट में लिखी है, अलेक्जेंड्राइंस में लिखी है। तो ये लिखी है क्वाड्रेंट्स ऑफ 10 सिलेबल लाइन, थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च तो 1751 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन: Who among the following is exclusively associated with diary writing in English? Samuel Pepys diary writer से related है। 1633 to 1703 में he kept a detailed private diary जो 1660 to 1669 तक का रिकॉर्ड वो उसमें रखते हैं, एंड प्रोवाइड करता है fascinating first hand account of major 17th century के इवेंट्स की। अगर हमें स्टडी करनी है तो ये डायरी बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जिसमें इस डायरी में सैमुअल पेपर्स ने ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड सेकेंड एंग्लो डच वॉर सबका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट, एक्ट वॉगलर इज ऑथर्ड बाय। एक्ट वॉगलर किसका वर्क है? मैथ्यू अर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, A.L. Tennyson and none of the above. So let's see the answer. रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है ये। एप्ट वॉगलर इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग जो पब्लिश हुआ था 1864 में और जो एक्सप्लोर करता है पावर एंड इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच वन इज करेक्टली मैच? हिथक्लिफ मैन्सफील्ड पार्क में नहीं, हिथक्लिफ आता है उदरिंग हाइट्स में। एमिली ब्रॉन्टे का एक ही नॉवल है, बड़ा फेमस नॉवल है, जिसमें कैथरीन एंड हिथक्लिफ आता है, तो हिथक्लिफ ये गलत हो जाएगा। मैगी टुलिवर द मिल ऑन द फ्लॉस, देन जोसेफ बॉन्डर बाय उदरिंग हाइट्स एंड फैनी प्राइस हार्ड टाइम्स।
तो इसमें गलत देख लेते हैं हम। हिथक्लिफ जो है आइकॉनिक कैरेक्टर फ्रॉम द एमिली ब्रॉन्टेस उदरिंग हाइट्स में आता है। मैन्सफील्ड पार्क ये जेन ऑस्टिन का नॉवल है, ना कि एमिली ब्रॉन्टे का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2 था, जैसे कि ये गलत है। 1 इज करेक्टली मैच है, तो ये करेक्टली मैच है। मैगी टुलिवर जो है द मिल ऑन द फ्लॉस में आता है, हमें गलत नहीं सही पहचानना था। तो मैगी टुलिवर कैरेक्टर द मिल ऑन द फ्लॉस में है, ठीक है। जोसेफ बॉन्ट्रीबाय ये जो है ये कैरेक्टर आता है चार्ल्स डिकेंस के नॉवल हार्ड टाइम में। एंड फैनी फ्राइस जो आता है प्रोटोगोनिस्ट है जेन ऑस्टिन के मैन्सफील्ड पार्क का। हार्ड टाइम इज बाय चार्ल्स डिकेंस। सो दिस इज हाउ एक ही करेक्ट मैच था मैगी टुलिवर का कैरेक्टर। Which of the following texts coined the slogan Vande Mataram? आनंद मठ, मृणालिनी, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला। सो द आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का इसमें आता है ये 1882। फिर उनके और भी राजमोहन वाइफ 1864, दुर्गेश नंदिनी 1865, कपाल कुंडला 1866, मृणालिनी in 1869 and Vishabhriksha, the Poison Tree 1873 and Indira in 1873 and Chandrasekhar in 1877। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के ये वर्क्स है। नेक्स्ट, इनाइन गाइडलाइंस गाइडेनेस। इनाइन गाइडेनेस is a phrase used in connection with the neoclassicism by। सो इनाइन गाइडेनेस एक फ्रेज है जिसे कनेक्ट किया जाता है न्यो क्लासिकल बाय हुम। एसटी कॉलरिज ने किया इसे, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो द करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। इनाइन गाइडेनेस is a phrase used to describe the overly ornate and often meaningless style of writing prevalent in the late 18th century, particularly poetry. Next, the following statement is given by which of the below mentioned critic? I was indignant. Okay, I was indignant. I demanded an explanation. Nothing happened. I burst apart. गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, होमी खेबाबा, स्टुअर्ट हॉल और फ्रांस फैनन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रांस फैनन। फ्रांस फैनन का ये कोटेशन है या ये लाइन है, ये स्टेटमेंट है। मेजर वर्क देख लेते हैं उनके। फ्रांस फैनन के मेजर वर्क है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क जो 1952 में आया था। फ्रांस फैनन को याद रखना जरूरी है। सो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क 1952 एक्सप्लोर करता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ रेसिज्म एंड कॉलोनियलिज्म ऑन ब्लैक इंडिविजुअल एज वेल एज इट एनालाइज द इंटरनलाइज्ड इंफीरियरिटी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। फिर उनका सेकेंड वर्क है द रेचेड ऑफ द अर्थ 1961 में, जिसमें उन्होंने एडवोकेट किया है वायलेंट रेजिस्टेंस एज अ पाथ ऑफ डीकोलोनाइजेशन। एनालाइज करता है कोलोनाइजर एंड कोलोनाइज रिलेशनशिप एंड द मेंटल हेल्थ। एंड प्रीफेस लिखा है जेन पॉल सत्रे ने। नेक्स्ट उनका वर्क है डाइंग कलोनियलिज्म। सो 1959 फोकस ऑन अल्जीरिया। आपको ये भी पता ना व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म, है ना। कोई सुपीरियर पावर वाली कंट्री कोई इंफीरियर कंट्री पे जब राज करती है, सब डिसीजन वो लेती है, उनकी ही पावर होती है उनके राज में, जिसे कॉलोनियलिज्म जिसे बोलते हैं। ओके, एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। Structuralism is different, post-structuralism is different, colonialism is there, imperialism is there. So we should have, as a literary student, all terms should be clear in our mind while studying. अगर आपको लिटरेचर में अच्छे से मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपके इसके की वर्ड्स, की फैक्ट्स, टर्म्स अच्छे से याद होने चाहिए, तब जाके आप एक कनेक्ट कर पाओगे लिटरेचर में। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से राइटर कौन से इरा से बिलोंग करते हैं, अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से राइटर कौन से इरा से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो बेसिक आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका पक्का एकदम वेल प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए कि 16th सेंचुरी कैवेलियर पोएट्स क्या है, उसके बाद रोमांटिसिज्म में कौन से पोएट आते हैं, रोमांटिसिज्म में भी 2 पार्ट्स उसमें है, तो वो आपको पता होना चाहिए। लेट पोएट्स कौन से हैं, 18th सेंचुरी के राइटर्स कौन से हैं, क्रिटिक्स अलग से डिवाइडेड है, ये सारी बेसिक चीजें नो। नेक्स्ट, which of these is related exclusively with the Jacques Lacan? Real, id, symbolic, ego, imaginary। ये तो हमें पता है जैक्स लकान से ये रिलेटेड है क्या नहीं।
ईद, ईगो, सुपर ईगो, ऑल दीज टर्म्स किससे रिलेटेड है? तो ये तो हमारी स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ते हैं हम। तो ये तो लकान का थ्योरी नहीं है। ये ईद, ईगो, सुपर ईगो, ये स्ट्रक्चरलिज्म की एक साइको एनालिसिस थ्योरी में हम इसे पढ़ते हैं। तो जैक्स लकान जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही से ACE, यानी कि ए जैक्स लकान का है रियल, सिंबॉलिक एंड इमेजिनरी। देख लेते थोड़ा सा। इमेजिनरी इलिस्ट्रेटिव होलनेस एसोसिएट करता है मिरर स्टेज आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ईगो, इल्यूजन, इमेज एंड फैंटेसी। सिंबॉलिक एंड रियल, दीज आर दी 3 ऑर्डर बाय द जैक्स लकान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बाय द रविंद्रनाथ टैगोर? विसर्जन, चंद्रालिका, मुक्तधारा, परिणीता, then पुनर्नवा. So which is not by the Tagore? So A, B, B, C, D, A और AC. चंद्रालिका तो हमें पता है, B आ ही जाएगा, B दोनों ऑप्शन में है, A, B है और B, C है। So हम आंसर देख लेते हैं हमारा। तो D, E is correct here. ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परिणीता, इस पे मूवी थी भी बनी थी विद्या बालन की। परिणीता ये टैगोर का वर्क है एंड पुनर्नवा इज आल्सो वर्क बाय टैगोर। सो मेजर प्ले देख लेते हैं हम टैगोर के। टैगोर के गीतांजलि हमें मालूम है, गीतांजलि 1912 में पब्लिश हुई थी। 1913 में टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला था, टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला था गीतांजलि के लिए। और वो कब मिला था? 1930 में। और ये पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ओके, तो उनके मेजर वर्क लेते हैं। मायार खेला, द प्लेयर ऑफ इल्यूजन 1888, विसर्जन द सैक्रिफाइस 1890, देन चित्रंगदा 1892, राजा द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर 1910, डाकघर द पोस्ट ऑफिस 1912 एंड रक्त करभी रेड ऑलेंडर्स 1924 एंड चंडालिका अनटचेबल गर्ल 1933. Next question, identify the correct ones among the following. Dramatic monologue ensure the reciprocal dialogue of the narrator. The 19th century poet fully exploited the topic from the dramatic monologue. The poetry of experience by Robert Langbaum outlined the discussion on the dramatic monologue. The linguistic pragmatism make the narcissist speaker of dramatic monologue. The speaker and the listener in the dramatic monologue of Robert Browning share the same pedestal of communication. So what should be the correct? B, C and D. B, C and D is correct. The 19th century जो poet थे fully exploited the poetic form of dramatic monologue. The poetry of experience by Robert Langbaum outlined a discussion on dramatic monologue, and the linguistic pragmatics makes the narcissist speaker of dramatic monologue speak exclusively. Next question, identify the post-colonial critic who used the idea of Lacan, Michel Foucault, Jacques Derrida while critiquing Eurocentrism. तो कौन से पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है जिन्होंने यूज किया था लकान का आइडिया, मिशेल फूको का आइडिया, जैक्स डेरिडा का आइडिया अपने यूरोसेंट्रिज्म को क्रिटिसाइज करते? वो भाभा थे, गायत्री स्पिवक थी, अब्दुल जन मोहम्मद थे, एडवर्ड सैयद थे, एमी सीजर थी. विच वन इज करेक्ट? तो all are the correct here, because Eurocentrism is the worldwide that prioritize European perspective, values and history, often at all the expenses of the culture and history. Next question, identify the correct pair. Kalidasa, Amogha Varsha, Bhavabhuti, Uttar Ramcharit, Bhasa, Urubhanga, Rajashekara, Rajtarangini और राज तरंगिनी, ये जो है कल्लन का वर्क है. सोमदेवा, कथा, सरित सागर. सो हमें करेक्ट पेयर ढूंढना है, तो BCE करेक्ट है. भवभूति का उत्तर रामचरित करेक्ट है, भाषा का उरुभंग करेक्ट है, सोमदेवा का कथा सरित सागर करेक्ट है, क्योंकि ये कल्लन का वर्क है. ये राजतरंगिनी जो है, राजतरंगिनी ये कल्लन का वर्क है. कालिदासा का तो हमें शाकुंतल पता है, कुमार संभव पता है, एंड मेघदूता आल्सो बाय द कालिदासा. ओके, तो BCE करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर
एप्लीकेबल टू द टर्म कार्निवल। कार्निवल की टर्म हमें मिकाइल बख्तियान देते हैं। कार्निवल की टर्म हो, कार्निवल्स की हो, डिस्कोर्स की टर्म हो, या फिर उन्होंने और एक टर्म दिया था, I can't recall right now. Okay, carnival, then discourse, as well as he gave the one more two terms in it, his works. So let's see. Chronotope, chronotope also by him. So देख लेते हैं which of the following are applicable to the term carnival से कौन सा इसमें से अप्लाई होता है. It became important to the work of Russian theorist Michel Bakhtin. It means the way in which popular humor subverts official authority in classical. It overturned the established hierarchy and set up the popular and democratic counter culture. It bring out the serious element in literature. It used as the critical tool of interpretation of poetry. So correct हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट A B C. A B C is correct. मिकाइल बख्तियान का टर्म है, जैसे मैंने आप भी बताया, उन्होंने टर्म दिया था ये कार्निवलिस्ट को. B भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है. Which of the following statement are true in the context of Henry Fielding's Tom Jones? हेनरी फील्डिंग का एडवेंचर ऑफ टॉम जोन्स हकलबरी फिल्म फेमस वर्क है 1749. ठीक देख लेते. टॉम जोन्स इज अ कॉमिक एंड मोरालिस्टिक. टॉम एंड जोन्स आर द मेन कैरेक्टर ऑफ टॉम जोन्स. टॉम इज caught poaching his neighbor's game preserve. The history of Tom Jones is the full title of Tom Jones. All the above are correct. तो हमारा A, C and D is correct. ऑप्शन नंबर 2. A करेक्ट है, टॉम जोन्स कॉमिक एंड मोरालिस्टिक था. C, टॉम इज caught poaching in neighbor's game preserve. ठीक है. एंड डी ऑल्सो करेक्ट. द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स इज द फुल टाइटल ऑफ टॉम जोन्स. और कोई ये गलत है, टॉम एंड जोन्स कोई दो करेक्टर नहीं है. ओके. द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, एक सही, इसका पूरा टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग. ऑथर थे इसे हेनरी फील्डिंग. ये पब्लिश हुआ था 1749 में. एपिकरस नावल है, कॉमिक एपिक प्रोज है, 18th सेंचुरी का वर्क है. टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग रेज्ड बाय द स्क्वायर एल्वर्दी इज जेनरियस बट इम्पल्सिव, wrongly cast out due to the that Blefield jealousy, goes on journey filled with the adventure and romantic entanglements, remain in love with the Sophia Weston, and learns he is Allworthy's nephew, ends with the reunion and marriage to Sophia. Next question, which of these books are written by Nirad C. Chaudhary? The Continent of Circle, Principal Upanishada, A Passage to England, Our New Ruler, The Autobiography and Unknown India. निराद चौधरी के बुक्स हमें देखने हैं. तो A, C, E is correct. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कॉन्टिनेंट ऑफ सर्कल ये उनका वर्क है. पैसेज टू इंडिया भी निराद सी चौधरी का वर्क है. एंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया इज ऑल्सो बाय निराद सी चौधरी. निराज श्री चौधरी की वर्क्स ऑफ पब्लिकेशन ईयर, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया 1951 में आया था, पैसेज टू इंडिया 1959 में आया था, कॉन्टिनेंट ऑफ सर्कल 1965, टू लाइव और नॉट टू लाइव 1971, स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक मैक्स मुलर 1974, डाई हैंड ग्रेट एनाक 1887, थ्री हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोक्लिप्स ये 1997 का वर्क था. सो ऑल दिस वर्क बाय द नीरज चौधरी. ये क्रोनोलॉजिकली दिए गए मैंने वर्क्स है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया एंड लास्ट है द हॉर्समैन ऑफ न्यू एपोक्लिप्स. Next question, according to Gerard Jennett, which of the following are type of narrator? Extradigestic, heterodigestic, intradigestic, homodigestic, interdigestic. So the correct option is A, B, C, D. All are by given the G. Jennett. जी जेनेट ने दिए हुए नरेटर्स के टाइप है, एक्स्ट्रा, इंट्रा, हेट्रो, होमो और इंटरडाइजेस्टिक. सो नाउ व्हाट इज होमोडाइजेस्टिक? अ नरेटर हु इज आल्सो अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, जिसे बोलेंगे हम होमोडाइजेस्टिक. मतलब नरेटर खुद स्टोरी का हिस्सा है, ये हो गया होमोडाइजेस्टिक. अ नरेटर हु इज नॉट द कैरेक्टर इन द स्टोरी, ये हो गया हेट्रोडाइजेस्टिक. A narrator who tells the story within the story, character within the story became the narrator, intradigestic. And a narrator who is outside the story telling the story हम position beyond the character of event. Which of the following are representative text of gynocriticism? gynocriticism के representative text कौन कौन से? पेट्रार्किल मायर्स पैक द फीमेल इमेजिनेशन, मैरी एलमंस का थिंकिंग अबाउट वीमेन, सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुसान गुबर का द मैड वुमन इन द एटिक, एलन मूर का लिटरेरी वीमेन, केट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स. कौन से वर्क gynocriticism से डील करते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एज वेल एज सी भी हो जाएगा.
देख लेते ए सी एंड डी करेक्ट। ये पेट्रार्कियल मायर-स्पार्क, ये भी वर्क है गाइनोक्रिटिसिज्म का हिस्सा। सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुसान गुबर का द मैडमन ऑफ अटायर, इट इज आल्सो करेक्ट। ओके गाइस, तो द ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए सी डी, फोर्थ नंबर का। एंड एलन मूर्स लिटरेरी विमेन। पेट्रार्स मायर स्पार्क द फीमेल इमेजिनेशन वर्क एक्सप्लोर करता है नेचर ऑफ फीमेल इमेजिनेशन थ्रू लिटरेरी एनालिसिस फिटिंग विद इन द स्कोप ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म। मैरी एलमंस का थिंकिंग अबाउट वीमेन, ये जो बुक है ये क्रिटिकली एग्जामिन करता है हाउ वीमेन हैव पोर्ट्रेड इन लिटरेचर एंड स्टेरियोटाइप एसोसिएटेड विद देम। और ये भी फोकस करता है वीमेन एज अ राइटर, फोकस ऑन गाइनोक्रिटिसिज्म। देन Sandra Gilbert and Susan Guber का A Mad Woman in Attic, this is a seminal text in feminist literary criticism, prime example of gynocriticism, analyze करता है 19th century women writer को। Then एलन विमेन्स लिटरेरी, एलन मोर्स का लिटरेरी विमेन जो है फोकस करता है लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ विमेन। और केट मिलेट का जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स ये बुक है, वाइल फंडामेंटल टेक्स्ट इन द फेमिनिस्ट थियरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज मोर ब्रॉडली अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रियार्की इन लिटरेचर एंड सोसाइटी रादर देन स्पेसिफिकली फोकस ऑन विमेन एज राइटर एंड देयर लिटरेरी ट्रेडिशन। तो ये गाइनोक्रिटिसिज्म से डील नहीं करता है। Which of the following statements are true about the ethnographic research method? Ethnographic research method के बारे में क्या सही है? It enable the exploration of consumption of literary within defined social and historical setting. मतलब ethnographic research method जो वो enable करता है exploring the consumption of literature within defined social and historical setting. Journeys A. Roadways, reading the romance is one of the first example use of ethnographic research methodology. It is perceived as an act of uncovering objective reality. तो और रीडिंग नेशनल ज्योग्राफी बाय कैथरीन, ये जो है इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ए बी एंड डी है। थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा ए बी एंड डी। रीडिंग नेशनल ज्योग्राफी कैथरीन, ये जो है दैट ए लूट्स एंड जेन एल कोलिंस का मार्क इफेक्टिव यूज ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड टू फाइंड आउट द रोल ऑफ मैगजीन नेशनल ज्योग्राफिक मॉडल इन अमेरिकन अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड द यूनाइटेड स्टेट्स। Next question, which of the following are correct? Roddy Dollis, The Berrytown Trilogy, Abraham Stoker's Confession of an Irish Rebel, J.S. Lewis, The Chronicles of Narnia, Brendan Behan's Dracula, Joan Coffer's Artemis Fowl. Which one are correct? तो देख लेते हैं हम। A, C, E is correct. A, C and E मतलब A, C एंड ई। रॉडी डॉयल का द बैरीटाउन ट्रायोलॉजी है। C.S. लुइस का द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, इसमें मूवीज भी है। इवन कॉल्फर का आर्टेमिस फॉल। The Roddy Dollis, the Barrytown trilogies include The Commitments, The Snapper, and The Van. Confession of an Irish Rebel was written by Brendan Behan, and Dracula was written by Bram Stoker. नेक्स्ट मैच करना है हमें कार्ल मार्क्स का वर्क, लेवी स्ट्रॉस, मिशेल फुको, जेन पॉल सत्रे। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, बीइंग नथिंगनेस, द जर्मन आइडियोलॉजी, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये, ए का हो जाएगा थर्ड, जर्मन आइडियोलॉजी बाय कार्ल मार्क्स, और बी का हो जाएगा फोर्थ, लेवी स्ट्रॉस का द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंग्समैन, सी का हो जाएगा मिशेल फूको का मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, एंड डी का हो जाएगा सेकंड, जेन पॉल सत्रे का बीइंग द नथिंगनेस। नेक्स्ट देख लेते हैं करोनलिया सौरभ जी, इस पे सेट में क्वेश्चन आया है। कृपाबाई साथीनाथन, राजलक्ष्मी देवी, कमला मार्कंडे। बिटवीन द ट्विलाइट, द हिंदू वाइफ, नेक्टर इन द सीव, कमला मार्कंडे का नेक्टर इन द सीव है। सगुना, अ स्टोरी ऑफ नेटिव क्रिश्चियन लाइफ। सो द करेक्ट मैच करने डी का दूसरा हो रहा है, तो देख लेते हैं डी का थर्ड, सॉरी नेक्टर इन द सीव है, डी का थर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देख लेते हैं। फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो रहा है ए का पहला, करोनल सौरभ जी का वर्क है सगुना, अ स्टोरी ऑफ नेटिव क्रिश्चियन लाइफ, ठीक है, देख लेते। फिर बी का चौथा हो जाएगा, कृपाबाई का हो जाएगा, ओहो समथिंग इज बैड, बी का फोर्थ हो जाएगा, सौरभ जी का बिटवीन द ट्विलाइट,
ओके, कृपाबाई का सगुना स्टोरी, राजलक्ष्मी देवी का हो जाएगा द हिंदू वाइफ, एंड कमला मार्कंडे का नेक्टर इन द सी, जिसमें रुक्मिणी मेन कैरेक्टर है। डॉल कॉमन, ओके, मेलावली, आर्टिमर, बसोला। बसोला ये तो कैरेक्टर फिक्स हमें पता है, डचेस ऑफ माल्फी का है। मेलावेल, डॉल कॉमन, एडवर्ड सेकेंड। तो डी का हो रहा है हमारा थर्ड, फिर एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो ए का हो जाएगा दूसरा, डॉल कॉमन का हो जाएगा अल्केमिस्ट। मेलोविल जो कैरेक्टर है, डॉल कॉमन कैरेक्टर है, वो अल्केमिस्ट में है। मेलावली जो कैरेक्टर है, मेलावलियो ये जो कैरेक्टर है वो है 12th नाइट में। बेसेनियो, होरेशियो, एंटिनियो, वैसे मेलावलियो। देन मॉर्टिमर ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है एडवर्ड सेकेंड में, और बसोला द डचेस ऑफ माल्फी में। देखो, डॉल कॉमन द अल्केमिस्ट, बेन जॉनसन का ये प्ले है। मेलावलियो 12th नाइट का कैरेक्टर है, विलियम शेक्सपियर का वर्क है। मॉर्टाइमर ये एडवर्ड सेकेंड में कैरेक्टर है, क्रिस्टोफर मार्लो का ये वर्क है। बसोला डचेस ऑफ माल्फी, जॉन एब्स्टर का वर्क है। According to the Longinus, which two of the following qualities apply to the great poetry? It must be the work of genius and inspired person. It must be cause a feeling of melancholy in reader. It must be employ devices of rhetoric. It must be please selectively and special. तो कौन सा ग्रेट पोएट्री की क्वालिटीज लॉन्जाइस ने अपने सबलाइन वर्क में बताई है? तो ए एंड सी हमारा करेक्ट वर्क हो जाएगा। इट मस्ट बी द वर्क ऑफ जीनियस एंड इंस्पायर्ड पर्सन, एंड इट मस्ट बी एम्प्लॉय डिवाइसेस ऑफ द रेटोरिक। देन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर पैराफ्रेज ऑफ अ हेरेसी? पैराफ्रेज ऑफ अ हेरेसी किसने हमें दिया? तो ये हमें क्लिंट ब्रूक से मिलता है। क्लिंट ब्रूक का एसे था, द एसे का नेम था द हर्सी ऑफ पैराफ्रेज, आर्ग्यू दैट पैराफ्रेजिंग अ पोएम इफेक्टिवली रिमूव। मतलब क्लिंट ब्रूक्स का मतलब था कि किसी भी पोम को हम पैराफ्रेज करते, समरी उसकी लिखते हैं, तो उस पोम का इफेक्टिवनेस रिमूव हो जाता है, चला जाता है, उसका इसेंशियल मीनिंग जो है वो कम हो जाता है। तो हर्सी ऑफ पैराफ्रेज में वो आर्ग्यू करते हैं that he believed that the true meaning of the poem lies in the language, its formal structure. जब हम किसी पोएम को पैराफ्रेज बनाएंगे या पैराफ्रेज कराएंगे तो वो चार्म उस पोएट्री में नहीं रहता है। Who among the following compared the mind in creation to that fading coal? Wordsworth, Coleridge, Shelley और Keats. तो इस शैली ने कहा था द कंपैरिजन ऑफ द माइंड इन द क्रिएशन फेडिंग कोल इज फेमसली मेटाफर यूज्ड बाय द पीबी शेले इन हिज एसे डिफेंस ऑफ पोएट्री। Next, in Noam Chomsky's definition of grammar, which two features are drawn from the mathematics? Complexity, abstraction, transformation, generation. So the correct option is C and D, that is transformation and generation. देख लेते हैं हम नॉम चॉम्स्की का ट्रांसफॉर्मेशन रेफर करता है यूज्ड टू कन्वर्ट डीप स्ट्रक्चर इनटू द सरफेस स्ट्रक्चर, अ कोर aspect of Chomsky's transformational generative grammar. Generation, a grammar as generative system generate all the grammatical correct sentences using finite set of rules directly borrowed from the idea of generative system in mathematics.